Welcome to Purvaj World. So today, let me tell you a story of a small baby growing into 1 year old. So Purvaj started last year in 2022, 12th March. And at that time, what happened was there were many saris lying in my cupboard which were lying unnoticed. So I took them out and I looked at them. So there were 10 Irkali saris. I'm very fond of Irkali cotton saris. And I took them out and I looked at them and straight away went to see that how can I reform them, transform them so that I will enjoy wearing them myself. So I have a friend, Dr. Shefali Busbar, who helped me in reviving these saris. So she guided me. She guided me in my first season. And here is the first season which was rolled out. And Shefali has helped me in making some of the designs for the season 1. Many themes I have done so far. One of them was Mohenjo-daro. So Mohenjo-daro is a theme, and I like to work on the themes which are, of the past eras and the gone by days. I like the Purvaj, as the name says. I like to relive the moments which we have already lived earlier. And why not bring back the fashion and lifestyle which our Purvaj used to follow? And today, can't we transform our rich Indian culture on our costumes? Even this word Purvaj has a red line on the top of it. It depicts earlier the ladies used to put bindi on the top and a line on the top of the bindi, and that is what it represents. This word has itself come to me in my meditation, and the line is also very clearly seen during meditation only. So Purvaj is very divine and very spiritual. So this is how the Purvaj is expanding every month on month, because it is on demand. So finally, the client asks me, and I have a habit, I never say no, I say yes, because I have a wonderful team with me of my tailors. So my tailor, I explain the designs to my tailors, wherein I draw and explain that how it is to be done, how the sari is to be done. And then I do the cutting myself, then put the borders, and then we put the pins, and then he does the stitching on that particular sari. So the design is exactly the way I want, I explain. So this is how my tailors. Then we also do handmade tassels which we add onto the saris. About the tailors, men, I explain to him the designs, I get the fabrics, I give it to them, I bring the buttons which are very unique and ethnic. Then the choli tailor, he understands the requirements, I take the orders, I take the measurements of the clients and I give it to him. The idea of creating paintings on the sari is, I believe that India has a rich culture, and this culture we need to spread. After these 7 verticals, now I have started participating also in different competitions. Like I have participated in BizMaster, and you can see the awards and accolades. Purvaj was the first runner-up for season 1 BizMaster competition, which was held in July. And this is the best brand name award which Purvaj has got. Then after the success story of BizMaster, my contacts expanded. Bits and Bytes was the platform which made my product into a brand. It was just a product because it was within these 4 walls. My saris were in these 4 walls. But Bits and Bytes helped me in growing and making this product to a brand. And this was the journey when actually Purvaj started going ahead, and it really started its journey since last 6 months. The visibility has come up now. So digital platform is the best platform where you can exhibit your product so easily. So thank you Bits and Bytes for making this Purvaj brand. After that, just last month there was a fashion parade, and in the fashion parade also Purvaj participated. This was also organized by Bits and Bytes at Bandra MIG Club on 29 January. So this year also there was a participation. In this, a lovely thing happened. I met a participant, Uma Modi ji, who was participating in Dubai fashion show, and she was representing India, West of India, as brand ambassador. She approached Bits and Bytes asking that who can do a costume for her, because it is a theme-based fashion parade and she had to walk the cause. So the theme was Go Green, and Bits and Bytes recommended Purvaj for this particular sari and this particular costume.
Now the sarees have gone to Canada, they have gone to Australia, they have gone to Dubai. So it is truly becoming an international brand. Today I'm working on a season agenda. I'm very much attached to all of these historical monuments which are very age old and which are in India, which are at different places in India. So this I'm trying to promote. So thank you very much. I'm really thankful to my mother, who is really with me and who is guiding me. And she's the producer of the film. Isn't this great? She's 82 years old. And Purvaj herself is making this documentary for me today. She wanted me to capture all these beautiful moments which I had in life. So thank you God, and thank you my team, thank you my clients. I don't know how many people should I thank today for being where I am today. And let's grow together. I want you all to join this cause of spreading our Indian culture throughout the globe and making an international image of India all over. So thank you very much, beautiful women, for wearing my beautiful costumes. Thank you so much. नमस्कार, आप सभी का वैदिक फैशन शो सप्तऋषि गाथा में हार्दिक स्वागत है। यह स्थान इस शो के लिए विशेष और आदर्श है, जो हमें वैदिक भारत की नींव रखने के लिए 5000 साल पहले भारतीय युग में वापस ले जाएगा। तो आइए शुरू करें। हर तरफ जल ही जल। सृष्टि से पहले विष्णु ब्रह्मांडीय जल पर विश्राम करते हैं। पद्मनाभ उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है। चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा इसी कमल से प्रकट होते हैं। अपनी भूमिका को समझने के लिए वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। शांति। भगवान विष्णु उन्हें सृष्टि की रचना शुरू करने की सलाह देते हैं। शांति। फिर वे ब्रह्मांड की रचना का कार्य शुरू करते हैं। शांति। फिर वे मन से उत्पन्न 4 कुमारों की रचना करते हैं। शांति। वे उनसे सृष्टि की रचना में सहायता करने का अनुरोध करते हैं। शांति। लेकिन चारों कुमारों की रुचि केवल भगवान विष्णु के ध्यान में होती है। वे मना कर देते हैं और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर चारों दिशाओं में चले जाते हैं। सर्व शांति। भगवान ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनकी तीसरी आंख से भगवान शिव प्रकट होते हैं।
भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम से पंच महाभूतों की रचना करते हैं, जो ब्रह्मांड तथा मनुष्य को आपस में जोड़ते हैं। अतः श्री पंचभूताय शांति, श्री गणेशाय नमः। पृथ्वी, सुंदराय विद्महे भूतदात्राय धीमहि, तन्नो भूमि प्रचोदयात्, तन्नो भूमि प्रचोदयात्। हे सृष्टिमूलकर्ताय त्यागसहन प्रतिरूपाय धरणीभूताय शान्तये। जल, जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि, तन्नो वरुण प्रचोदयात्, तन्नो वरुण प्रचोदयात्। ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय पापसंहारनदीरूप जलभूताय शान्तये। जलभूताय शान्तये। अग्नि, महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। कालरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये। ज्वालरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये। वायु, वासाय विद्महे उग्ररूपाय धीमहि, तन्नो वायु प्रचोदयात्, तन्नो वायु प्रचोदयात्। हनुमा जन्मकार श्वासप्राण अपानाय बुद्धिभाव समानाय वायुभूताय शान्तये। भीमहनुमा जन्मकार श्वासप्राण अपानाय बुद्धिभाव समानाय वायुभूताय शान्तये। आकाश, व्यापिताय सृष्टिपितृस्वरूपये सूर्यचन्द्रग्रहगमनाय गगनभूताय शान्तये। नीलवर्णाव्यापिताय सृष्टिपितृस्वरूपये सूर्यचन्द्रग्रहगमनाय गगनभूताय शान्तये। शान्ति शान्ति भुव शान्ति शान्ति अग्निशान्ति अग्निशान्ति वायुशान्ति वायुशान्ति वरुणशान्ति वरुणशान्ति। बहुत ही
सुंदर पंचमहाभूत पृथ्वी माता, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, सप्तर्षि शांति। अब शुरू होता है पंचमहाभूत का तांडव। भूकंप, सुनामी, बाढ़, आग से होने वाली तबाही, चक्रवात, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का समय। चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और मानवता को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए 7 पुत्रों की रचना की। महर्षि वशिष्ठ, कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। महर्षि विश्वामित्र, विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः महर्षि भारद्वाज, सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः। कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैर्षयः स्मृताः
दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः महर्षि जमदग्नि वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः महर्षि कश्यप भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः महर्षि गौतम वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः महर्षि अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः ये 7 महर्षि हैं और इन्हें प्रथम आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जो वेदों का संरक्षण करने और आध्यात्मिक सत्यों पर प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी है। पंच महाभूतों के क्रोध को देखकर उन्हें शांत करने के लिए हमारे महर्षियों ने पांचों तत्वों की स्तुति में अनेक मंत्र और श्लोक रचे और इस प्रकार हमारे भारत में सुंदर और अर्थपूर्ण ऋचा का अस्तित्व आया। दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः त्रिमूर्ति पंच महाभूत और हमारे सप्त ऋषियों की स्मृति में और प्रार्थना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस समृद्ध भारतीय विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक दिव्य उपहार के रूप में आज हम सौंपते हैं। हमारे पवित्र वेद महर्षि वेदव्यास मतलब संकलन करता, व्यास और वेदों का वर्गीकरण करने वाला।
वेद व्यास। उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने वेदों के मंत्रों को और प्राचीन वैदिक ऋचा को 4 ग्रंथों में संकलित किया। 18 पुराणों, ब्रह्मा सूत्रों का रचयिता और विश्व की सबसे लंबी महाकाव्य महाभारत, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता समाहित है और रचयिता भी। वेदों का विभाजन उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर किया था और आज भी हम नियमित रूप से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। शांति शांति। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन मूलभूत पवित्र ग्रंथ, जिनका अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृत में मौलिक रूप से प्रसारित प्राचीन ऋषियों को प्रकट हुए शास्त्र सत्य। प्रत्येक वेद को आगे 4 भागों में बांटा गया है। संहिता, मूल मंत्र और भजन। ब्राह्मण, संहिताओं के व्याख्या और कर्मकांडों का वर्णन। आरण्यक, वनों में पढ़े जाने वाले ग्रंथ जो दर्शन और अनुष्ठानों के पीछे के अर्थ बताते हैं। उपनिषद, वेदांत के दार्शनिक ग्रंथ जो शिक्षक शिष्य संवाद के रूप में ज्ञान देते हैं। अब हम 4 वेदों और 10 प्रमुख उपनिषदों को प्रस्तुत करेंगे। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, कुल 10 मंडलों अध्यायों में विभाजित है, जिनमें 1028 सूक्त भजन और लगभग 10,600 मंत्र है। यह देवताओं की स्तुति और प्राकृतिक शक्तियों की वंदना पर केंद्रित है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों में से एक है, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन जीवित साहित्य माना जाता है। और यह सच्चाई हमें बेहद गर्व का एहसास कराती है। यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों और कर्मकांडों का गद्य और पद्य मंत्रों का संग्रह है, जिसे मुख्य रूप से 2 शाखाओं में, मतलब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है, जो कर्मकांडीय ज्ञान प्रदान करता है और वैदिक जीवन शैली व सृष्टि उत्पत्ति के रहस्यों का उजागर करता है। शांतिरेव शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिः, रोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांतिः। सामवेद। सामवेद मुख्य रूप से गान या संगीत प्रदान करता है, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों को धून, साम, गान में गाया जाता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक, ऋचाओं का संग्रह, और गान, गायन के लिए मंत्र। सामवेद को मंत्रों का वेद भी कहते हैं और यह भारतीय संगीत की नींव है। अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को, जैसे चिकित्सा, सुरक्षा और दैनिक जीवन से जुड़ी प्रार्थनाएं और मंत्र है। यह
20 कांडों मतलब भागों में और लगभग 6000 मंत्रों का संग्रह है, जिसे बाद में रचा गया माना जाता है। और इसमें ज्ञान, कर्म और उपासना का मिश्रण है, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का वर्णन है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना। उप पास, नी नीचे, षड मतलब बैठना, जिसका तात्पर्य है शिष्यों को गुरु के पास बैठकर आत्मा और परम सत्य के बारे में गुप्त गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। यह प्राचीन हिंदू ग्रंथ गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए इसका अर्थ गुप्त शिक्षा या रहस्य भी है। आइए चारों वेदों के प्रमुख उपनिषदों को देखें और जानें कि इन वेदों से वैदिक भारत में कौन सा मंत्र प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो सृष्टि की रचना, आत्मा के स्वरूप और चेतना को ब्रह्मा के रूप में स्थापित करता है, जिसमें महाकाव्य प्रज्ञान ब्रह्मा यानी प्रज्ञान ही ब्रह्मा है इसी से है, और यह बताता है कि आत्मा ही सब कुछ है और आत्मज्ञान के मार्ग को दिखाता है। यह ब्रह्मा विद्या पर जोर देता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूं। कृष्ण यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद। कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित एक प्रमुख उपनिषद है, जो यमराज और नचिकेता के संवाद के माध्यम से आत्मा, अमरता और ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों का वर्णन करता है, जिसमें नचिकेता की मृत्यु के बाद मृत्यु के स्वामी यमराज से प्रश्न पूछने और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की कहानी। और ये उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के आदर्शों पर भी प्रकाश डालता है। पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः सहोवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो 3 मुख्य भागों वल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली में बटा है। और इसमें ब्रह्मा मतलब परम सत्य के ज्ञान, वैदिक शिक्षा के नियम, पंचकोश सिद्धांत और सत्यवद धर्मचर मतलब सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो जैसे नैतिक उपदेश शामिल है, जिसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद। ईशा। ईशा उपनिषद हिंदू धर्म के प्रमुख उपनिषदों में से एक है, जो शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है, और यह ईश्वर, आत्मा, प्रकृति और जीवन के सार अद्वैतवाद का ज्ञान देते हैं, जिसमें केवल 18 श्लोक है, और यह कहता है कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है और हमें त्याग भाव से जीना चाहिए, जिसमें पहला मंत्र ईशा वास्य मिदम सर्व इससे शुरू होता है और आध्यात्मिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत्तस्मिन् नपो मातरिष्वा दधाति। बृहदारण्यक उपनिषद महान वनों के उपनिषद है, जो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है और आत्मा व ब्रह्मा के गहन ज्ञान से पुनर्जन्म, सृष्टि और आध्यात्मिक मुक्ति पर केंद्रित है, जिसमें यज्ञवल्क्य और जनक जैसे ऋषियों के संवाद शामिल है, और ये अद्वैत वेदांत का एक आधारभूत ग्रंथ है, जो अहम ब्रह्मासि और अस्तो मा सदमय जैसे प्रसिद्ध मंत्रों के लिए जाना जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सामवेद के प्रमुख उपनिषद। अथ प्रथमः खण्डः केनोपनिषद। केनोपनिषद सामवेद से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसके द्वारा, और यह परम ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप और ज्ञान की खोज करता है। यह बताता है कि इंद्रियां और मन स्वयं शक्तिहीन है और चेतना का प्रकाश आत्मा से आता है। यह उपनिषद आत्मा की शक्ति के स्तोत्र और सभी देवताओं के कारण के रूप में ब्रह्मा के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः, न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात् इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो ब्रह्मा, परम सत्य और आत्मा के एकत्व पर केंद्रित है। इसमें ओम के महत्व, विभिन्न उपासनाओं और आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्गों का विस्तृत वर्णन है। विशेषकर श्वेत केतु और उद्दालक के संवाद के माध्यम से, जो तत्वमसि तुम वही हो जैसे महाकाव्यों से ज्ञान प्रदान करता है। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद। अथ प्रश्नोपनिषत् शान्तिमन्त्रः हरिः। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें ऋषि पीपलाबाद और उनके शिष्यों के बीच 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी सृष्टि, प्राण,
ओम, नींद, स्वप्न, चेतना और मोक्ष के उत्तरों का माध्यम से जीवन, ब्रह्मांड और ब्रह्मा के रहस्यों पर गहन चर्चा की गई है, जो आत्मा और परम सत्य के ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। देह समित पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः सरं संवत्स्यथ समाप्ता च प्रश्नोपनिषत्। सत्यमेव जयते नानृतं मुंडक। मुंडक उपनिषद अथर्व वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मा और आत्मा के स्वरूप को समझाता है, जिसमें सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय होती है का प्रसिद्ध वाक्य है। यह 3 मुंडकों मतलब खंडों में विभाजित है और इसमें गुरु शिष्य संवाद यानी अंगिरा और शौनक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। अथ माण्डुक्योपनिषत्। मांडुक्य उपनिषद अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण और सबसे छोटा उपनिषद है जो ओम अक्षर के माध्यम से ब्रह्मा और आत्मा के एकात्मता का वर्णन करता है। चेतना की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुपुष्टि और तुरिया को समझता है और यह बताता है कि केवल यही उपनिषद मुक्ति चाहने वालों के लिए पर्याप्त ज्ञान रखता है, जिसमें केवल 12 मंत्र है जो गहन दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। अथ द्वितीयः खण्डः। ओम। आइए हम सब मिलकर अपने वेदों और शाश्वत अनमोल ज्ञान की प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें और इस समृद्ध भारतीय विरासत और संस्कृति को विश्व स्तर पर अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इसी के साथ ही हम यह नहीं कहेंगे कि वैदिक फैशन शो का समापन हो गया, बल्कि हम ये कहेंगे कि अभी इसी क्षण हम सब मिलके वैदिक भारत 2026 में वैदिक युग के आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस वैदिक ज्ञान को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक विश्व स्तर पर फैलाएं। जल्द ही एक और नए विषय के साथ फिर से हम मिलेंगे जो हमारे अपने पूर्वज के बारे में एक और कहानी को प्रदर्शित और उजागर करेगा। आप सभी इस शो को देखने के लिए आए, हम आप सभी का और जो लोग हमें मीडिया के माध्यम से लाइव देख रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि और वैदिक मोर की ओर से शुभकामनाएं। Harsha Karave, the street curator, for felicitation. Thanks for the lovely performance. I really do not have any word to say, but we need to wind up now since there is a next show. Kindly just keep it. Thank you so much. Thank you so much for being here.
and let's promote culture of India together. Thank you so much participants, thank you so much artists who did live painting, thank you so much all the calligraphers over here, they all are here, and all these saris made by all the artists of Purvaj. Thank you so much. Have a nice evening.